pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss Leave Travel Concession LTC 1988. It is part 1. In this part, I will clarify 15 questions because related to the LTC matter, sometimes we are in confusion related to the some questions, and I will clarify. It is part 1, so definitely within 4 to 5 parts actually I will clarify all the questions and I will clear all your doubt. So it is part 1. This part I will discuss clarification of 15 questions. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Follow my Facebook page, same Asit Government Rule Guru, and my WhatsApp number is there, 8327782034. If any query is there, you can contact with me and clarify your doubt. So now I am going to discuss 15 questions related to the LTC. I will clarify it properly. So question number 1, it is definition of family for the purpose of availing LTC facility as defined in Rule 4D of CCS LTC Rules 1988. तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होता है. तो हमारा जो LTC बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एंटाइटल होते हैं LTC के लिए. तो हु आर द डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स who are eligible for LTC, okay, related to the government employee. Relations included in the definition of family. All these relations actually included in the definition of family, and all are entitled for LTC for the government employee. First one, spouse, husband and wife. So यदि हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है तो वाइफ एलिजिबल है. यदि वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, हस्बैंड एलिजिबल है. और यदि बोथ इट मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर गवर्नमेंट सर्वेंट, तो बेसिकली वन साइड में सपोज बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर एलिजिबल फॉर LTC. सो if wife will take LTC with husband, okay, suppose in case of husband LTC, suppose in case of husband LTC, if wife included, then in case of wife LTC actually it means spouse case, either one of the spouse actually get the LTC, okay, if both are eligible, husband and wife. Clear? Two eldest surviving unmarried children including step children and legally adopted children. यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, तो अनमैरिड चिल्ड्रन एक क्वेश्चन आता है कि जैसे 25 ईयर्स क्रॉस हो गया, ओके, जो चिल्ड्रन है 25 ईयर्स क्रॉस हो गया, तो वो अनमैरिड है, क्या वो एलिजिबल है? वो एलिजिबल है. यहाँ पर ओनली अनमैरिड, इट मीन्स टू एल्डेस्ट, ओके, टू एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन. यहाँ पर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर यहाँ पर आपको देखना है कि मैरिड और अनमैरिड. तो अनमैरिड है, फर्स्ट टू एल्डेस्ट अनमैरिड चिल्ड्रन including step children and legally adopted children eligible. Then next one, divorced, abandoned, separated from husband, widowed, daughters, wholly dependent and residing with the government employee. Suppose daughter case में यदि वो divorced है, abandoned है, separate from the husband, and similarly widowed daughters who wholly dependent on the government employee, also eligible for LTC. तो यहाँ पर जो टू एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन हैं वो फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ठीक है, ये क्लियर हो गया. तो इसमें स्पाउस केस में यदि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो आइदर और इट मीन्स आइदर हस्बैंड LTC वाइफ कंसिडर एंड और वाइफ LTC हस्बैंड कंसिडर. ओके, तो इसमें नहीं होगा कि इट मीन्स हस्बैंड साइड में वाइफ LTC ले लिया और वाइफ साइड में हस्बैंड ले लिया, तो ये नहीं होगा. तो कोई एक ले सकता है. ठीक है. और नेक्स्ट, चिल्ड्रेन एक्सीडिंग, सपोज एक ट्विन चिल्ड्रन होता है, सपोज जो सेकेंड बार थे वो ट्विन चिल्ड्रन होगा, तो इस केस में एलिजिबल है. बिकॉज जो हमारा रूल है टू एल्डेस्ट
अनमैरिड चिल्ड्रन। तो उसमें ट्विन केस में, सपोज सेकेंड बार्थ ट्विन होता है, तो इस केस में एलिजिबल होगा, ठीक है, एक्सेप्शनल केस में। पेरेंट्स, स्टेप पेरेंट्स, okay, who are wholly dependent on the government employee, irrespective of whether they are residing with the government servant or not। कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो पेरेंट्स बेसिकली फादर मदर और स्टेप पेरेंट्स वो भी एलिजिबल है यदि वो फुली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और यहाँ पर है कि वेदर दे रिजाइड विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट, वो नहीं है कि ये नहीं है कि ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ है तो वो एंटाइटल है एलटीसी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो हस्बैंड बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रह सकते हैं और सेपरेट भी रह सकते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स एंड स्टेप पेरेंट्स एलिजिबल। सिबलिंग्स में आप अनमैरिड ब्रदर्स को ले जाइए, अनमैरिड ब्रदर्स, माइनर ब्रदर्स, अनमैरिड माइनर ब्रदर्स, इट मीन्स जो माइनर ब्रदर होगा लेस देन 18 होगा। एंड सिमिलरली अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, अबैंडन्ड, सेपरेटेड, विडोड सिस्टर्स। ओके, सिस्टर्स केस में कोई एज लिमिट नहीं है यदि वो अनमैरिड है, कि डाइवोर्स्ड है, अबैंडन्ड है, सेपरेटेड है और विडोड सिस्टर्स है और वो होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्रोवाइडेड दैट देयर पेरेंट्स, यदि वो सिस्टर जो पेरेंट्स है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। तो इस केस में जो विडोड सिस्टर्स है, कि डाइवोर्स्ड सिस्टर्स है, कि अबैंडन्ड, अनमैरिड, वो फुली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहाँ पर एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट देयर पेरेंट्स आर आइदर नॉट अलिव और आर देमसेल्व्स होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि पेरेंट्स एक्चुअली होली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इन दिस केस एक्चुअली यदि सिस्टर्स अनमैरिड है, कोई एज लिमिट नहीं है, डाइवोर्स्ड है, अबैंडन्ड है, कि विडोड है, फुली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर, वो भी एलिजिबल है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रिलेशंस है वो एलिजिबल नहीं है, दे आर नॉट एंटाइटल। यहाँ पर रिलेशंस नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। ये जो एलटीसी फैमिली होता है वो ये सब रिलेशंस इंक्लूड नहीं है। पेरेंट्स इन लॉ, पेरेंट्स इन लॉ जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये एलिजिबल नहीं है। चिल्ड्रेन जो डाइवोर्स्ड, अबैंडन्ड, सेपरेटेड, विडोड सिस्टर्स, की चिल्ड्रेन ऑफ डाइवोर्स्ड, अबैंडन्ड, सेपरेटेड, विडोड डॉटर्स, बोथ, चाहे वो सिस्टर्स हो कि डॉटर्स हो, ये जो केस में डाइवोर्स्ड, अबैंडन्ड, सेपरेटेड, विडोड और उनका चिल्ड्रेन, यहाँ पर उनका चिल्ड्रेन एक्चुअली वो एंटाइटल नहीं है, ठीक है। इस केस में एक्चुअली वो सिस्टर्स जो डॉटर्स साइड में, ये कंडीशन में वो एंटाइटल है मगर उनका चिल्ड्रेन एंटाइटल नहीं है। नॉट मोर देन वन वाइफ, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं है, जैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, वो भी एंटाइटल नहीं है। और एनी अदर नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैमिली एज डिफाइंड इन रूल 4 ऑफ सीसीएस एलटीसी रूल्स 1988। तो रूल 4 को आप याद रखिए, रूल पोजीशन में जो रूल 4 एक्चुअली फैमिली मेंबर्स के ऊपर है, कि हु आर द फैमिली मेंबर्स एक्चुअली एंटाइटल फॉर एलटीसी, ओके, ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। ये रूल पोजीशन को भी याद रखिए। तो यहाँ पर मैं क्लैरिफाई किया कि व्हिच फैमिली मेंबर्स एक्चुअली एलिजिबल एंड व्हिच आर नॉट। तो कौन सा रिलेशंस है जो एलिजिबल है और जो रिलेशंस है वो एलिजिबल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कंफ्यूजन होता है, मैं थोड़ा क्लैरिफाई किया उसको, तो आपका डाउट क्लियर होगा। अभी चलो सेकेंड क्वेश्चन को चलेंगे। डिपेंडेंसी क्राइटेरियन क्या है, व्हाट इज द डिपेंडेंसी क्राइटेरियन फॉर द पर्पज ऑफ एलटीसी। तो डिपेंडेंसी क्राइटेरियन में सभी सोर्सेस से यदि इनकम 9000 है प्लस उसके ऊपर सपोज डियरनेस रिलीफ है, डीआर है, ओके। जो सपोज अभी डियरनेस रिलीफ जैसे आपका डियरनेस अलाउंस वो 53% है, सपोज इसको आप प्रेजेंट केस में सपोज में 53% ऑफ 9000 ले लिया, ठीक है। तो उतना कैलकुलेट कर लीजिए, ऑफ 9000 मैंने ले लिया, तो जितना कैलकुलेट कीजिए, इससे जो भी इनकम होगा फ्रॉम ऑल सोर्सेस मीन्स आपका पेंशन है कि टेम्पोररी इंक्रीज इन पेंशन है, तो इससे कैलकुलेट करना है। जो 7th पे कमीशन में बोला है 9000 प्लस उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, आप कैलकुलेट कर लीजिए। वो इस डीम्ड, यहां पर दे दिया क्लियरली, नॉट एक्सीड, डज नॉट एक्सीड मिनिमम पेंशन प्रेजेंटली 9000 पर मंथ एज पर 770 एंड डियरनेस रिलीफ। जो आपका पेंशन है वो 9000 है, पेंशन है और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं होगा, तब वो डिपेंडेंट केस में जाएगा। फ्रॉम ऑल सोर्सेस, जैसे पेंशन है कि कोई पेंशन में कोई इंक्रीज हुआ, तो आपको कैलकुलेशन देखना है 9000 प्लस उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, ठीक है। इतना कैलकुलेट करके देख लीजिए, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा तो वो डिपेंडेंट में नहीं आएगा, ठीक है।
तो इसको याद रखिए। और यहां पर और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्पाउस केस में डिपेंडेंसी नहीं है, स्पाउस सपोज जैसे हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इस केस में हम वाइफ को डिपेंडेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि हस्बैंड वाइफ यहाँ पर वन यूनिट है। तो कंडीशन ऑफ डिपेंडेंसी इज नॉट एप्लीकेबल टू स्पाउस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो डिपेंडेंसी है वो स्पाउस केस में एलिजिबल वो नहीं है डिपेंडेंसी कंडीशन। ये जो कंडीशन है जैसे अभी बताया, कोई ऐसा फैमिली मेंबर है सपोज जो सोर्सेस ऑफ इनकम 9,000 प्लस उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ है, इससे इक्वल है कि इससे कम है, तो वो डिपेंडेंट कंडीशन में जाएगा। ठीक है, और उससे ज्यादा होगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। सपोज डियरनेस रिलीफ अभी 53% है, उसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, इससे ज्यादा होगा सोर्सेस ऑफ इनकम, जैसे पेंशन मिल रहा है, तो उससे ज्यादा होगा तो वो डिपेंडेंट नहीं होगा। मगर ये जो डिपेंडेंसी कंडीशन स्पाउस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, तो इसको याद रखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। इज इट कंपल्सरी फॉर द वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू रिजाइड विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू क्लेम एलटीसी? यहां पर पूछा है कि जो वाइफ है कि पेरेंट्स है कि चिल्ड्रन है, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रहेंगे तो उनको एलटीसी मिलेगा? वो साथ सेपरेट रहेंगे तो उनको एलटीसी नहीं मिलेगा, ये कुछ नहीं है। वो सेपरेट रह सकते हैं और सेपरेटली वो एलटीसी ले सकते हैं। ठीक है, it is not compulsory that wife, parents and children they stay with the government employee. They can stay separately and different group wise in different time, okay, in different places also, it means they can avail LTC. तो ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रहेंगे तो उनको एलटीसी मिलेगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ। स्पाउस यहाँ पर थोड़ा दो क्लैरिफिकेशन है। स्पाउस अभी मैं बताया था कि हस्बैंड वाइफ कंसिडर्ड एज वन यूनिट, तो जो डिपेंडेंसी कंडीशन है वो स्पाउस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। अब पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन शुड बी होली डिपेंडेंट, क्योंकि जो भी पेरेंट्स चिल्ड्रन है वो होली डिपेंडेंट होना चाहिए। पेरेंट्स केस में बताया था पेरेंट्स स्टेप पेरेंट्स बहुत एलिजिबल है, मगर वो डिपेंडेंट होना चाहिए। और सिमिलरली चिल्ड्रन, अनमैरिड चिल्ड्रन, अनमैरिड चिल्ड्रन, एज कोई लिमिट नहीं है, अनमैरिड चिल्ड्रन शुड बी होली डिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर? तो वो सेपरेट रह सकते हैं। ओके, फैमिली मेंबर्स जो एंटाइटल है, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, वो सेपरेट रह सकते हैं और सेपरेटली वो एलटीसी ले सकते हैं। सो डिफरेंट टाइम टू डिफरेंट प्लेसेस और इन डिफरेंट ग्रुप्स दे कैन टेक एलटीसी, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। Whether son or daughter of the government employee who is above 25 years of age but still unmarried is eligible for LTC claim? मैं बताया था ऐसा नहीं। यहां पर जो रूल है आप देखिए, रूल 4 जो है LTC इट मीन्स 1988, आप देखिए रूल 4 में क्लियरली मेंशन है कि टू एल्डेस्ट अनमैरिड चिल्ड्रन फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो एंटाइटल है एलटीसी के लिए। तो कोई एज नहीं है। आप वो सपोज यहां पर दिया है जैसे अबव 25 ईयर्स ऑफ एज चिल्ड्रन एंड अनमैरिड है, तो वो एलिजिबल है क्योंकि यहां पर कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, एज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ही और सी इज अनमैरिड एंड होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दो कंडीशन है, हम ओनली देखना है अनमैरिड, टू फर्स्ट टू एल्डेस्ट अनमैरिड चिल्ड्रन, और वो फुली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो एंटाइटल है। यहां पर कोई एज लिमिट नहीं है, हमको देखना है अनमैरिड और फुली डिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। भाई रूल 4 क्लैरिफाई उसको किया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है, आर इन द लॉज ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल टू अवेल एलटीसी? लॉज मीन्स सपोज पेरेंट्स इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एलिजिबल नहीं है, डॉटर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, वो कोई भी एलिजिबल नहीं है, इन लॉज एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पेरेंट्स इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एलिजिबल नहीं है। इस साइड में देखिए ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, वो कोई भी इन लॉज एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, तो इसलिए मेरा आंसर नो है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। आर फैमिली मेंबर्स अलाउड टू ट्रैवल सेपरेटली? यस, वो सेपरेटली एलटीसी ले सकते हैं फैमिली मेंबर्स। ये नहीं है कि डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स एक्चुअली दे शुड रिजाइड विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दे शुड स्टे विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसा कुछ नहीं है।
dependent family members, those are eligible for LTC. They are staying separately and in different groups, in different time. Okay, they can take LTC to different places in case of all India LTC, right? So are family members allowed to travel separately? Yes, there is no such restriction. A government employee and members of his family may travel separately or in different groups at different times to different destinations during a block of 2 or 4 years as the case may be. क्लियर? तो वो आपको याद रखना है कि जो एंटाइटल फैमिली मेंबर्स है, जो एंटाइटल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स है, वो क्या है, ट्रैवल सेपरेटली और इन डिफरेंट ग्रुप्स और इन डिफरेंट टाइम और डिफरेंट डेस्टिनेशंस दे कैन टेक एलटीसी. ठीक है. और ये जो है रूल 9, आप देखिए, ये जो है रूल 9 रूल पोजीशन को याद रखिए कि सेपरेटली द एंटाइटल फैमिली मेंबर्स कैन टेक एलटीसी, राइट? तो ये रूल 9 उसको क्लैरिफाई किया है. क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. वेदर some members of the family can avail LTC to hometown while some others for visiting anywhere in India in the same 2-year block period. हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सपोज देखिए अभी जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है हमारा 2020-25, आप उसको बाइफर्केट कर दीजिए 2 ईयर ब्लॉक में. एक है 22-23 और एक है 24-25. अभी जो है 24-25. सपोज हम लेंगे 24 इस ब्लॉक में. सपोज इसमें आप होम टाउन लेंगे तो 22-23 में होम टाउन, 24-25 में ऑल इंडिया एलटीसी. सिमिलरली 22-23 में आप ऑल इंडिया एलटीसी लिया तो 24-25 में होम टाउन एलटीसी. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें क्या है, सपोज मैं एग्जांपल अभी प्रेजेंट के ऊपर दे रहा हूं. जैसे 24-25, सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो ऑल इंडिया एलटीसी लिया, ठीक है, मगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डिपेंडेंट चिल्ड्रन है वो होम टाउन एलटीसी लिए. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए. सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय होम टाउन एलटीसी लिया और चिल्ड्रन ऑल इंडिया एलटीसी लिया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो इसमें याद रखना है. तो डिफरेंट जो ग्रुप्स है, सपोज वन ग्रुप होम टाउन लिया और एक ग्रुप ऑल इंडिया ले सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, ये भी रूल 9 क्लैरिफाई किया है, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे. आर स्पाउस और चिल्ड्रन रिजाइडिंग एट ए प्लेसेस अदर देन हेडक्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय अलाउड टू अवेल एलटीसी? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सपोज अभी स्पाउस एंड चिल्ड्रन वो हेडक्वार्टर में नहीं है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हेडक्वार्टर है वहां पर वो स्टे नहीं करते हैं, बोथ स्पाउस एंड चिल्ड्रन. तो वो एलटीसी के लिए एलिजिबल है कि नहीं? एलटीसी के लिए एलिजिबल है. सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं. जैसे हेडक्वार्टर है बीबीएसआर भुवनेश्वर उड़ीसा, ये होम टाउन है, ठीक है. और सपोज अभी स्पाउस एंड चिल्ड्रन वो दिल्ली में है, ये एचक्यू है, हेडक्वार्टर, सॉरी बीबीएसआर हेडक्वार्टर है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, मगर उसका जो स्पाउस एंड चिल्ड्रन वो दिल्ली में रहते हैं. तो इस केस में वो एलटीसी अवेल करेंगे कि नहीं? अवेल करेंगे. वो सपोज दिल्ली से बीबीएसआर हेडक्वार्टर को आएंगे और रिटर्न करेंगे, ये ऑल इंडिया एलटीसी में जाएगा. याद रखिए, अभी स्पाउस एंड चिल्ड्रन कहां पर है? न्यू दिल्ली में है. और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसका हेडक्वार्टर बीबीएसआर में है. तो स्पाउस एंड चिल्ड्रन सपोज हेडक्वार्टर आएंगे और रिटर्न करेंगे, वो ऑल इंडिया एलटीसी होगा. और एक है यहां पर स्पाउस जो अनमैरिड चिल्ड्रन, ओके, स्पाउस अनमैरिड चिल्ड्रन, ये सपोज होम टाउन, सपोज जो होम टाउन है, सपोज वो पुणे है, होम टाउन है. सपोज यहां पर स्पाउस एंड चिल्ड्रन वो दिल्ली से पुणे आएंगे, ठीक है, होम टाउन आएंगे, वो होम टाउन एलटीसी में जाएगा. ओके, स्पाउस एंड चिल्ड्रन कहां पर है? अभी दिल्ली में है. और हेडक्वार्टर कहां पर है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय बीबीएसआर में. और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होम टाउन है पुणे में है. तो स्पाउस एंड चिल्ड्रन यदि दिल्ली से पुणे जाएंगे, होम टाउन जाएंगे, तो वो होम टाउन एलटीसी में आएगा. मगर जब स्पाउस एंड चिल्ड्रन वो हेडक्वार्टर आएंगे और रिटर्न करेंगे, वो
ऑल इंडिया एलटीसी में जाएगा। क्लियर। मगर इसमें और एक आप देख लीजिए, इसमें सपोज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रीइंबर्समेंट। जैसे दिल्ली टू भुवनेश्वर, भुवनेश्वर टू दिल्ली, ये तो सपोज मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में दिल्ली टू भुवनेश्वर, भुवनेश्वर टू दिल्ली, ये तो ऑल इंडिया एलटीसी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरा रीइंबर्समेंट मिलेगा। मगर जब स्पाउस एंड चिल्ड्रन एक्चुअली दिल्ली टू होम टाउन पुणे जाएंगे, पुणे होम टाउन है, वो ये होम टाउन एलटीसी में जाएगा, ये होम टाउन एलटीसी में जाएगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि होम टाउन पुणे है, दिल्ली से पुणे। मगर उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, हेडक्वार्टर टू पुणे, बीबीएसआर टू पुणे और दिल्ली टू पुणे, उसमें जो लिस्ट होगा वही रिइंबर्समेंट होगा। सभी समय हेडक्वार्टर से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर जो है बीबीएसआर है। तो दिल्ली टू पुणे, ठीक है, क्या फेयर है, और बीबीएसआर टू पुणे क्या फेयर है। जो जो बेसिकली जो रूट होगा, आपको याद रखिए जब भी आप एलटीसी लेते हो तो आपको इट मीन्स घूम घूम कर नहीं जाना है, ठीक है। वो आपको जो जाना है, आपको एक जो स्मॉलर रूट है उसको फॉलो करना है। तो वैसे आप दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, दिल्ली टू पुणे, बीबीएसआर टू पुणे, जो भी लिस्ट फेयर होगा वही रिइंबर्समेंट होगा, ठीक है। मगर दिल्ली टू भुवनेश्वर, भुवनेश्वर टू दिल्ली जो ऑल इंडिया एलटीसी होगा उसमें पूरा रिइंबर्समेंट होगा। तो थोड़ा एग्जांपल दिया, क्लैरिफाई किया आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर क्लैरिफाई किया है, देखिए यहां पर क्लैरिफाई किया है, वही क्लैरिफिकेशन है। सपोज इट इज क्लैरिफाइड दैट full reimbursement as per the entitlement of the government servant shall be allowed for journeys performed on LTC by the family members from any place in India to headquarters or place of posting of the government servant at back। मैं बताया था अभी, जैसे एग्जाम्पल दिया था कि गवर्नमेंट सर्वेंट का, देखिए ये इसको मैं क्लैरिफाई करता हूं, ये पार्ट को मैं क्लैरिफाई करता हूं। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हेडक्वार्टर है बीबीएसआर, ठीक है, मगर स्पाउस एंड अनमैरिड चिल्ड्रन वो रहते हैं दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। वो भी सपोज वो दिल्ली से भुवनेश्वर हेडक्वार्टर जैसे आएंगे, स्पाउस एंड चिल्ड्रन वो दिल्ली से भुवनेश्वर आएंगे और रिटर्न करेंगे, और ये ऑल इंडिया एलटीसी में जाएगा, ये ऑल इंडिया एलटीसी में जाएगा, ठीक है, क्लियर। और इसमें पूरा रिइंबर्समेंट मिलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि दिल्ली से वो हेडक्वार्टर आएंगे, हेडक्वार्टर से फिर दिल्ली जाएंगे। तो मेरा एग्जाम्पल में तो ये ऑल इंडिया एलटीसी जाएगा, क्लियर। और एक दे दिया, व्हेन सच जर्नी इज परफॉर्म्ड फ्रॉम द होम टाउन द एलटीसी शैल बी काउंटेड अगेंस्ट होम टाउन एलटीसी एंड इन केस द जर्नी इज फ्रॉम एनी अदर प्लेस इन इंडिया देन इट शैल बी काउंटेड अगेंस्ट एनी प्लेस इन इंडिया। अच्छा, और एक देखिए, सपोज यहां पर जो इसको मैं क्लैरिफाई करता हूं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हेडक्वार्टर बीबीएसआर है, ठीक है, और जो होम टाउन है सपोज वो पुणे है, यहां पर स्पाउस एंड अनमैरिड चिल्ड्रन, ओके, वो एंटाइटल है स्पाउस एंड 2 एल्डेस्ट अनमैरिड चिल्ड्रन, ठीक है, वो भी होम टाउन में है, पुणे में है। यदि वो भी हेडक्वार्टर जाएंगे और हेडक्वार्टर से आएंगे, वो सपोज यहां से वो भी जाएंगे हेडक्वार्टर, पुणे से बीबीएसआर और बीबीएसआर टू पुणे, ये जाएगा होम टाउन एलटीसी में जाएगा, ये होम टाउन एलटीसी में जाएगा। तो अभी क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, तो ये होम टाउन एलटीसी में जाएगा, क्लियर। तो दोनों को थोड़ा मैं क्लैरिफाई किया। तो किस केस में एक्चुअली वो स्पाउस एंड चिल्ड्रन, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट स्पाउस एंड चिल्ड्रन स्टे विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, वो इट मीन्स फ्रॉम एनीवेयर एल्स, इट मीन्स ऑफ इंडिया, दे कैन गो टू द हेडक्वार्टर एंड रिटर्न बैक, वो ऑल इंडिया एलटीसी में जाएगा। और यदि वो, जैसे मैं अभी एक एग्जाम्पल ये बताया था कि जैसे वो होम टाउन से हेडक्वार्टर आएंगे, हेडक्वार्टर से होम टाउन जाएंगे, वो होम टाउन एलटीसी में आएगा, ठीक है, क्लियर। मगर और एक इसको और थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, जैसे हेडक्वार्टर एक्चुअली बीबीएसआर है और होम टाउन जो है वो पुणे है, और स्पाउस एंड चिल्ड्रन अनमैरिड चिल्ड्रन 2 एल्डेस्ट अनमैरिड चिल्ड्रन वो दिल्ली में है, ठीक है, ये है। तो यहां से वो सपोज दिल्ली से भुवनेश्वर आएंगे, दिल्ली से, देखिए इसको क्लैरिफाई करता हूं, ये जो आज इट मींस टू एंड फ्रो, ये ऑल इंडिया एलटीसी, ये ऑल इंडिया एलटीसी, ठीक है। सपोज यहां से वो दिल्ली से, ठीक है, यहां से सपोज वो पुणे जाएंगे, होम टाउन जाएंगे और रिटर्न करेंगे, तो इस केस में वो होम टाउन एलटीसी होगा,
होम टाउन होगा, मगर जब कैलकुलेशन करेंगे रीइंबर्समेंट तो आप सभी समय हेडक्वार्टर से लीजिए। क्या है हेडक्वार्टर टू आप पुणे, बीबीएसआर टू पुणे और दिल्ली टू पुणे, जो भी लिस्ट होगा फेयर उसी को रीइंबर्समेंट किया जाएगा। मगर दिल्ली टू पुणे जाएंगे तो होम टाउन होगा एलटीसी, मगर दिल्ली टू हेडक्वार्टर बीबीएसआर टू एंड फ्रो वो ऑल इंडिया एलटीसी होगा। मगर दिल्ली टू पुणे होम टाउन, वो होम टाउन एलटीसी में होगा। मगर जो रीइंबर्समेंट होगा कैलकुलेशन हम हेडक्वार्टर से देखेंगे, हेडक्वार्टर बीबीएसआर टू पुणे, दिल्ली टू पुणे, जो लिस्ट फेयर होगा वही रीइंबर्समेंट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, कैन द स्पाउस ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई who is working in a private sector avail leave travel allowance or travel reimbursements provided by his or her employer or organization? देखिए, सपोज हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है एंड जो वाइफ है वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है, और सपोज वाइफ एलटीए ले लिया, लीव ट्रैवल अलाउंस उसको प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। क्या इस केस में यदि वाइफ यहां पर लीव ट्रैवल अलाउंस ले रहा है, प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट एम्प्लॉई है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है वाइफ, क्या वो अभी जो हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, क्या हस्बैंड का एलटीसी में वो एलिजिबल है? एलिजिबल है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, वाइफ प्राइवेट सेक्टर में है और वो एलटीए ले रहा है, तो कोई अफेक्ट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है मीन्स वो हस्बैंड का जो एलटीसी है उसको अवेल कर सकता है। यदि वाइफ, वो इस केस में क्या होता, वाइफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता और खुद का एलटीसी है और खुद का एलटीसी लेता तो वो हस्बैंड का एलटीसी में नहीं जाता। मगर यहां पर वाइफ क्या है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और वो उसको भी एलटीए मिल रहा है, तो इस केस में क्या वो हस्बैंड का एलटीसी में एलिजिबल है? एलिजिबल है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर क्लियरली दे दिया, एस नो सच रेस्ट्रिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पाउस वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर। यदि स्पाउस प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है और उसको एलटीए मिल रहा है, ओके, तो एज यूजुअल वो एलिजिबल है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एलटीसी में, वो एलिजिबल है। तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है स्पाउस, तो वो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसको एलटीए मिल रहा है फिर भी उसको, वो सपोज वाइफ जैसे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, वो हस्बैंड का एलटीसी में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उसको एलटीए मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है और उसको एलटीए मिल रहा है, मगर वो वाइफ का एलटीसी अवेल कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इज रिइंबर्समेंट अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड एज्ड लेस देन 5 years हु ट्रेवल्स बाय ट्रेन एंड ऑप्ट्स फॉर ए सेपरेट सीट और बर्थ? इज रिइंबर्समेंट अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन एज, अच्छा आप देखिए, ट्रेन में लेस देन 5 ईयर चाइल्ड के लिए कोई टिकट प्राइस नहीं है। और सिमिलरली आप फ्लाइट देखिए, फ्लाइट में जो रूल है, लेस देन 2 ईयर चाइल्ड के लिए कोई फ्लाइट टिकट नहीं है। तो वही पूछा, इज रिइंबर्समेंट अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड एज लेस देन 5 years हु ट्रैवल बाय ट्रेन एंड ऑप्ट्स फॉर ए सेपरेट सीट और बर्थ, क्योंकि लेस देन 5 years तो कोई टिकट प्राइस नहीं है, और सिमिलरली फ्लाइट में लेस देन 2 years कोई टिकट प्राइस नहीं है, फेयर प्राइस नहीं है। तो इस केस में रिइंबर्समेंट कैसे होगा? क्लियर? ये दोनों भी याद रखिए, लेस देन 5 year चाइल्ड इन ट्रेन टिकट इज फ्री, सिमिलरली फ्लाइट में लेस देन 2 years चाइल्ड टिकट इज फ्री। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, whether a government employee who is not eligible for travel by air is entitled for reimbursement of a airfare in respect of children aged less than 5 years whose full fare is charged by the airlines? इसमें देखिए, सपोज एक छोटा एग्जांपल देता हूं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो फ्लाइट के लिए नॉट एंटाइटल, फ्लाइट के लिए वो एंटाइटल नहीं है, मगर वो फ्लाइट में चला गया, तो फ्लाइट के लिए एंटाइटल नहीं है मगर वो फ्लाइट में ट्रैवल किया, तो कैसे उसको रिइंबर्समेंट मिलेगा? सपोज वो एंटाइटल है ट्रेन में AC2 में एंटाइटल है, मगर वो फ्लाइट में, सपोज एलटीसी जर्नी जो हुआ फ्लाइट में हुआ, वो एंटाइटल नहीं है फ्लाइट के लिए, तो उस केस में जो रिइंबर्समेंट होगा AC2 के हिसाब से होगा। हम देखेंगे AC2 का फेयर और फ्लाइट का फेयर जो लिस्ट होगा उसी के हिसाब से रिइंबर्समेंट होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
फ्लाइट में आप एलिजिबल नहीं हो, फ्लाइट में आप ट्रैवल कर लिया, तो आपका जो रिइंबर्समेंट होगा जो आपका एंटाइटल है, सपोज मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में AC2 में, तो AC2 के हिसाब से आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा कि हम दोनों को कंपेयर कर देंगे, फ्लाइट का फेयर और AC2 का फेयर जो लिस्ट होगा, ठीक है। मगर यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो फ्लाइट में एंटाइटल नहीं है, नॉट एंटाइटल है, नॉट एंटाइटल, ठीक है। तो उसका जो चिल्ड्रन है, उसका जो चाइल्ड है वो एक्चुअली लेस देन 5 ईयर्स है, लेस देन 5 ईयर्स है। मगर फ्लाइट में तो टिकट लगेगा, फ्लाइट में रूल्स क्या है, फ्लाइट में यदि चाइल्ड का एज लेस देन 2 ईयर्स, उसके लिए प्राइस नहीं है, टिकट प्राइस नहीं है। मगर यहां पर दे दिया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्लाइट के लिए एंटाइटल नहीं है, मगर उसका जो चाइल्ड है, सपोज 4 ईयर है कि 3 ईयर है, वो फ्लाइट में जा रहा है तो फ्लाइट में पेमेंट कर दिया, मगर लेस देन 5 ईयर्स है तो एंटाइटल नहीं है। तो एंटाइटल नहीं है तो सपोज वो एंटाइटल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंटाइटल है AC2 में, क्या वो जो चाइल्ड लेस देन 5 ईयर्स, वो तो पेमेंट किया, फ्लाइट फेयर पेमेंट किया, क्या वो एंटाइटल नहीं है, तो क्या वो AC2 के हिसाब से उसको रिइंबर्समेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो कि ट्रेन में लेस देन 5 ईयर चाइल्ड, लेस देन 5 ईयर चाइल्ड उनका टिकट प्राइस नहीं है। तो यदि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्लाइट के लिए एंटाइटल नहीं है और उसका चाइल्ड सपोज लेस देन 5 ईयर्स, जैसे 4 ईयर्स 3 ईयर्स है, और वो फ्लाइट प्राइस पे किया है फ्लाइट के हिसाब से, तो उसको रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा क्योंकि फ्लाइट के लिए एंटाइटल नहीं है। तो फ्लाइट के लिए एंटाइटल नहीं है तो वो ट्रेन में जो एंटाइटल, जो इट मीन्स बर्थ के लिए है, उसके हिसाब से उसको रिइंबर्समेंट मिलना चाहिए। मगर यहां पर चाइल्ड को भी नहीं मिलेगा, फ्लाइट प्राइस तो पेमेंट कर दिया गया चाइल्ड का, मगर वहां पर जो ट्रेन फेयर के हिसाब से, जो एंटाइटल के हिसाब से उसको चाइल्ड का रिइंबर्समेंट नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन में क्या है, लेस देन 5 ईयर चाइल्ड के लिए टिकट प्राइस क्या है, नील है, ठीक है। तो उस केस में रिइंबर्समेंट नहीं होगा। तो वही वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर वही है, नो रिइंबर्समेंट है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को चलेंगे। कैन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर्स अवेल LTC while he or she is in suspension? यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय सस्पेंशन में है, आप बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय सस्पेंशन है वो LTC के लिए एलिजिबल नहीं है, मगर फैमिली मेंबर्स LTC के लिए एलिजिबल है। तो यहां पर याद रखिए, सस्पेंशन केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं है, मगर जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स है, जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स है, वो एंटाइटल है LTC के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय सस्पेंशन पीरियड में गवर्नमेंट एम्प्लॉय LTC के लिए एंटाइटल नहीं है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। ब्लॉक ईयर्स के ऊपर पूछ रहा है। जैसे अभी में प्रेजेंट जो ब्लॉक ईयर है 20 to 25, 4 ईयर है। 4 ईयर ब्लॉक पीरियड को हम बाइफर्केट कर देते हैं, स्प्लिट अप कर देते हैं। इट मीन्स 2 ब्लॉक ईयर्स जो 2 ईयर्स का ईच है। जैसे 20 to 23 है, 24 25 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो 4 ईयर को हम बाइफर्केट कर देते हैं। सपोज इसमें आप होम टाउन LTC लिया, इसमें आप ऑल इंडिया लेंगे, और रेसिप्रोकल कर दीजिए, और रेसिप्रोकल कर दीजिए। यदि आप 20 to 23 में, और इसमें सपोज आप ऑल इंडिया ले लिया, ऑल इंडिया ले लिया, इसमें आप होम टाउन लेंगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। सपोज 20 to 23 में होम टाउन ले लिया, 24 25 में ऑल इंडिया, 20 to 23 में ऑल इंडिया ले लिया, 24 25 में होम टाउन, ठीक है, क्लियर। तो उसमें ग्रेस पीरियड है, जैसे 20 to 23 का ग्रेस पीरियड है, ये ग्रेस पीरियड है 20 to 23 का। ग्रेस पीरियड जो होगा वो सपोज ये 2 ईयर्स में आप नहीं लिया, उसका ग्रेस पीरियड 2024 होगा। 24 25 का ग्रेस पीरियड होगा 2026 होगा, ठीक है। सपोज 20 to 23 ये जो 2 ईयर ब्लॉक है, आप इसमें LTC नहीं लिया तो ये ग्रेस पीरियड है 2024, इसमें आप LTC ले सकते हो 20 to 23 का। 24 25 आप नहीं लिया LTC तो उसका ग्रेस पीरियड 2026 है, आप ले सकते हो, ठीक है। तो एक ग्रेस पीरियड रहता है, ठीक है। चलो यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर एक ऑप्शन है, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो हेडक्वार्टर और उसका होम टाउन सेम है, यदि यहां पर याद रखिए, यदि हेडक्वार्टर और होम टाउन सेम प्लेस होगा तो ओनली ऑल इंडिया LTC मिलेगा। हेडक्वार्टर जो है वो होम टाउन है तो उसमें होम टाउन LTC नहीं मिलेगा। यहां पर इस केस में
होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगा, ओनली ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा। अब देखिए प्रीवियस ब्लॉक ईयर 18 to 21, अभी जो है 20 to 25, और नेक्स्ट जो होगा 26 to 29, 26 27 एंड 28 29। इसको हम बाइफर्केट कर देंगे टू ब्लॉक में, जो 2 ईयर्स। ठीक है, तो ओनली यदि हेडक्वार्टर होम टाउन, जो आपका होम टाउन है वो हेडक्वार्टर है, तो उसमें ओनली ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा। ठीक है, और इसमें आपका दे दिया डिफरेंट है, जैसे आपका हेडक्वार्टर होम टाउन डिफरेंट है, हेडक्वार्टर प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड होम टाउन आर डिफरेंट, तो ऑप्शन है। यदि आप प्रेजेंट देखिए, जो ये अभी जो ब्लॉक ईयर पीरियड है 2022 to 25, एक है 22 to 23, 24 25, इसमें होम टाउन लिया 22 to 23 में, तो 24 25 में एनी प्लेस इन इंडिया, और यदि 22 to 23 में एनी प्लेस इन इंडिया, तब 24 25 में होम टाउन, और इसमें ग्रेस पीरियड रहता है, इसमें ग्रेस पीरियड रहेगा 2024, इसमें ग्रेस पीरियड रहेगा 2026, ये ग्रेस पीरियड रहता है। ठीक है, यदि 22 23 में नहीं लिया, 2024 मीन्स कैलेंडर ईयर मीन्स जनवरी 1 to December 31। सिमिलरली 24 25 में नहीं लिया तो 2026, तो सभी समय एलटीसी के लिए कैलेंडर ईयर। अब देखिए कैलेंडर ईयर मीन्स जनवरी 1 to December 31, तो ये ग्रेस पीरियड रहता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, 20 to 23 होम टाउन, 24 25 एनी प्लेस इन इंडिया, ये 20 to 23 एनी प्लेस इन इंडिया, 24 25 होम टाउन। क्लियर, तो यदि हेडक्वार्टर एंड होम टाउन आर डिफरेंट। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द ब्लॉक ईयर फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हुज हेडक्वार्टर्स और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड होम टाउन आर द सेम। तो ये तो मैं बताया, जो हेडक्वार्टर है वो होम टाउन यदि सेम है, ओनली ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा, क्योंकि इसमें होम टाउन एलटीसी यहां पर नहीं मिलेगा, ओनली ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा 4 इयर्स में एक बार। ओके, 4 इयर्स में ओनली ऑल इंडिया एलटीसी ओनली मिलेगा, यदि जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपका होम टाउन है। ये तो अभी क्लैरिफाई किया आपको। क्वेश्चन नंबर 15, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु हैज डिक्लेयर्ड होम टाउन avail 2 LTCs एनीवेयर इन इंडिया और होम टाउन इन 1 कैलेंडर ईयर। क्या एक कैलेंडर ईयर में वो 2 LTC ले सकता है? तो 2 LTC ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पर एक एग्जांपल दे दिया, केस 1 देखिए, यहां पर 2 LTC ले सकता है। एस ही कैन टेक 2 LTCs इन द बिगिनिंग ऑफ ईच सब ब्लॉक्स आज पर इलिस्ट्रेशन। देखिए यहां पर एग्जांपल, इन द कैलेंडर ईयर 2022 1 अनअवेल्ड एलटीसी ऑफ प्रीवियस ब्लॉक ईयर, सपोज 2021, सपोज मेरा एग्जांपल यहां पर देख लीजिए, आप क्लियर हो जाओगे। सपोज अभी है 2024 25, ये जो 2000 अभी जो ब्लॉक था 2022 to 25, ये 4 ईयर ब्लॉक था, इसमें एक था 20 to 23 और एक था 24 25, अभी मैं प्रेजेंट 2 ईयर ब्लॉक बता रहा हूं 24 25, इसमें आप नहीं लिया एलटीसी, तो एक ग्रेस पीरियड है, ग्रेस पीरियड हो जाएगा 2026, कैलेंडर ईयर ले जाइए, और तो 24 25 का एलटीसी आप नहीं लिया तो एक ग्रेस पीरियड ईयर है 2026 जनवरी 1 to December 31, तो 24 25 का एलटीसी आप ले सकते हो। और जो न्यू ब्लॉक आ जाएगा, अभी न्यू ब्लॉक क्या आ जाएगा ना, 2026 to 29 4 ईयर ब्लॉक आ जाएगा अभी नेक्स्ट ईयर में, 26 27 28 29, तो फिर आप 20 ये जो 2026 29 में, तो आप क्या किया 2026 27, इसमें भी आप 2026 में ले लिया, तो दोनों ले लिया। 2024 25 का जो एलटीसी है आप नहीं लिया, ग्रेस पीरियड 2026 में ले लिया, और बाकी जो नेक्स्ट 4 ईयर ब्लॉक आएगा 2026 29, तो उसका जो फर्स्ट 2 ईयर ब्लॉक पीरियड है 2026 27, सपोज आप 2026 में उसका ले लिया एलटीसी, तो एक ईयर में आप 2 एलटीसी ले लिया, 24 25 का लिया और 2026 27 का लिया। आप समझ रहे कि नहीं? तो वही ऑप्शन दे दिया। यहां पर एक एग्जांपल देखिए, सपोज 2021 में आप एलटीसी नहीं लिया, ओके, तो 2021 में आप नहीं लिया, तो सपोज इसका ग्रेस पीरियड क्या है 2022 है, इसमें आप ले लिया, इसमें आप एलटीसी ले लिया, बाकी फिर नेक्स्ट जो ब्लॉक ईयर आ रहा है 20 to 23, ठीक है, ये 20 to 23
24 25, अच्छा 22 23 में, फिर आप 2022 में आप ले लिया, एलटीसी ले लिया। तो एक पर्टिकुलर ईयर में आप 2 एलटीसी ले लिया, एक ग्रेस पीरियड के हिसाब से ले लिया और एक जो प्रेजेंट है तो 22 23 जो नॉर्मल है उसमें भी ले लिया, तो आप 2 एलटीसी ले सकते हो। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा है, कैन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु वाज डिक्लेयर्ड होम टाउन अवेल 2 एलटीसीज एनीवेयर इन इंडिया और होम टाउन इन वन कैलेंडर ईयर? तो दोनों होम टाउन आप ले सकते हो कि एक होम टाउन एक ऑल इंडिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दोनों होम टाउन एक पर्टिकुलर ईयर में, जो मेरा एग्जांपल है, और भी कुछ केस 2 देख लीजिए। सपोज इन द कैलेंडर ईयर 2024 वन अनअवेल्ड एलटीसी, अच्छा 22 23 में आप एलटीसी नहीं लिया, तो ये ग्रेस पीरियड है, ये ग्रेस पीरियड ईयर है, इसमें एलटीसी ले लिया। सपोज इसमें आप सपोज आप इसमें 23 आप होम टाउन है, आप इसमें होम टाउन एलटीसी ले लिया। ठीक है, होम टाउन एलटीसी ले लिया, फिर क्या होगा, 24 25 आ गया, इसमें सपोज 22 23 का जो ग्रेस पीरियड है आप होम टाउन एलटीसी लिया, तो 24 25 में ऑल इंडिया होगा, तो फिर आप क्या किया, 2024 में आप ऑल इंडिया एलटीसी ले लिया, ऑल इंडिया एलटीसी ले लिया। तो इट मींस पर्टिकुलर ईयर में आप 2 एलटीसी ले लिया, एक ग्रेस पीरियड के हिसाब से और एक नॉर्मल। 22 23 आप सपोज मेरा इमेजिनरी एग्जांपल 2022 23 में नहीं लिया, 24 ग्रेस पीरियड में चले गए, होम टाउन ले लिया एलटीसी, और 24 25 उसमें ऑल इंडिया एलटीसी के लिए आप एलिजिबल हो, तो 24 फिर अगेन वही 2024 में आप ऑल इंडिया एलटीसी ले लिया जो ब्लॉक 24 25 का है, तो पर्टिकुलर 2024 में आप 2 एलटीसी ले लिया। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर दे दिया, इन द कैलेंडर ईयर 2026 वन अवेल्ड, अच्छा 24 25 में आप नहीं लिया क्योंकि एक ब्लॉक ईयर है, ये है देखिए 22 23 और 24 25 ये एक है, और अभी जो न्यू आएगा 4 ईयर ब्लॉक 26 27 ओके 28 29 ये 4 ईयर ब्लॉक है, मैं इसको बॉक्स में रखा। ठीक है, 24 25 में आप एलटीसी नहीं ले पाया, इसमें आप ऑल इंडिया लिया था, इसमें आप ऑल इंडिया लिया था। ठीक है, इसमें आप एलिजिबल हो होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल हो, मगर आप होम टाउन नहीं ले पाया 24 25 में। तो ग्रेस पीरियड 24 20 इसमें ग्रेस पीरियड क्या है 2026 है, तो इसमें आपको होम टाउन एलटीसी मिलेगा क्योंकि 22 23 ऑल इंडिया आप लिए थे। 24 25 में क्लियर, 24 25 में होम टाउन एलटीसी है, आप एलिजिबल हो। 24 25 में नहीं लिया तो उसका ग्रेस पीरियड क्या है 2026, तो 2026 में आप होम टाउन एलटीसी ले लिया। और आप देखिए नेक्स्ट जो न्यू आएगा अभी 4 ईयर ब्लॉक पीरियड 2026 टू 29, तो 2 ईयर ब्लॉक है 26 27 28 29, तो इसमें फिर 26 27 में फिर 2026 में आप सपोज होम टाउन ले लिया, इसमें होम टाउन लोगे तो इसमें 28 29 में ऑल इंडिया होगा। तो इसमें दो, एक पर्टिकुलर ईयर में एक ग्रेस पीरियड के हिसाब से और एक नॉर्मल के हिसाब से आप 2 एलटीसी लिया और फिर दोनों सेम है, तो चाहे दोनों होम टाउन है कि दोनों, इस केस में जैसे ब्लॉक जो 4 ईयर ब्लॉक चेंज होता है तो इधर दोनों होम टाउन हो सकता है, दोनों ऑल इंडिया हो सकता है, और एक होम टाउन एक ऑल इंडिया, और ठीक है, तो पर्टिकुलर ईयर में आप 2 एलटीसी ऐसे ले सकते हो। क्लियर, तो ये एक्चुअली 15 क्वेश्चंस था, तो आपको और मैं क्लैरिफाई करूंगा और 4-5 पार्ट्स है और डिफरेंट क्वेश्चंस जो कंफ्यूजन है आपका, मैं डेफिनेटली आई विल क्लियर योर डाउट, डेफिनेटली आई सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम रिलेटेड टू एलटीसी। आप वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट को, उसमें इसमें जैसे 15 क्वेश्चंस लाया, सेकेंड पार्ट में भी आपको 15 क्वेश्चंस में क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, तो प्लीज माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification for my upcoming videos. आज इतना ही है, थैंक यू।